हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनलो क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ फ्रेंड्स, आज के पेपर में अगेन कल की तरह बिम्स्टेक पे बहुत ज़्यादा फोकस है, इंडिया के नेबरहुड में बहुत ज़्यादा फोकस है। तो आज जो फॉरेन रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से। फर्स्ट इज़ बिम्स्टेक, देन श्रीलंका एंड बिम्स्टेक श्रीलंका रिलेटेड विद दैट। फाइन। नाउ उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे एक फिर से रशिया यूक्रेन क्राइसिस का डेवलपमेंट, एंड टुडे वी विल डिस्कस इन द न्यूज़पेपर itself about Myanmar political crisis. So let's start with the news. So if you will just see over here that India China relation से related है। So इंडिया और चाइना ने साथ में प्रोजेक्ट अनाउंस किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स इन 3 आइलैंड्स ऑफ जाफना। नाउ दिस जाफना इट इज़ अगेन अ तमिल डोमिनेटेड एरिया, ओके। और यहाँ पे जो है हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट डेवलप होगा। नाउ ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया इज़ गोइंग टू डेवलप द पावर प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। इफ़ यू विल जस्ट सी दैट earlier 2 power projects have been signed with श्रीलंका। तो अगर हम देखेंगे तो देयर वाज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन सोलार वेंचर इन संपूर टाउन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एनटीपीसी कहाँ पे डेवलप करेगा? सोलार पावर प्रोजेक्ट इन संपूर टाउन। उसके बाद अदानी ग्रुप इट इज़ गोइंग टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन मन्नार एंड पुनेरीन इन नॉर्थ, ओके। तो ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं तो दीज आर इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, northern and eastern part of Sri Lanka. Okay, this is the area which is Tamil dominated. Okay, now we already know that Sri Lanka has announced a separate fund for northeastern Sri Lanka. Okay, so that fund is called as Northeast Development Fund. Northeast Development Fund. ओके फाइन। नाउ अगर हम आगे इस न्यूज़ को अगर देखते हैं तो यहाँ से एक और भी न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट ट्रिंकोमली ऑयल फार्म। सो इंडिया ऑल्सो हैज़ गॉट ऑन लीज सम ऑयल टैंकर्स इन ट्रिंकोमली ऑयल फार्म इन श्रीलंका। नाउ India and Sri Lanka they have signed 2 defense pacts, okay. So this 2 defense pact has been signed with India. One is about the floating dock and the second is about Dornier reconnaissance aircraft. Now what is the importance of this project? This project which is coming up in Nainativu, Delft and Neduntivu. There are 3 islands on which this in Jaffna where India is going to develop hybrid power projects. तो ये जो तीनों आइलैंड के नाम हैं अगेन इट इज़ नाइनातीवू, डेल्फ्ट एंड अनालीतीवू आइलैंड, ओके फाइन। नाउ ये पहले यहाँ पे तीनों आइलैंड पे श्रीलंका चाइना डेवलप करने वाली थी पावर प्रोजेक्ट। नाउ दिस 3 आइलैंड्स दे आर इन पार्क बे विच इज़ barely 50 किलोमीटर फ्रॉम तमिलनाडु, सो इट वॉज posing security threat to India. So India had registered its concern, then later on Sri Lanka agreed and gave this project to India. Fine. Now Sri Lanka and India they have also agreed to set up a maritime rescue coordination center. Fine. It is a $6 million. It will be set up by $6 million, which will be given by India. Okay, and Cabinet of India has approved it, and there will be Bharat Electronics which will be coordinating this project. Now the third is helping to develop fisheries in Sri Lanka. So fishery harbors are going to come up in Pointe Pedro, Pesalai and Gurunagar in northern province. अब उसके बाद अगर हम देखेंगे कोलंबो में बालापीटिया साउथ ऑफ कोलंबो, ओके, हियर द फिशिंग हार्बर्स विल बी डेवलप्ड. The next is Sergey Lavrov, who is the foreign minister of Russia. He is going to visit India. And now we did this news in yesterday's newspaper. जो उनका visit है that is going to focus on oil, crude oil supply from Russia to India, defense and Russia-Ukraine crisis. Okay, अब यहाँ पे US is going to send is Deputy NSA Dalip Singh ahead of Sergey Lavrov.
ओके, तो यहाँ पर हम जैसे कि देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया का जो स्टैंड है रशिया यूक्रेन क्राइसिस में, सो इंडिया हैज़ एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया in United Nations Security Council, General Assembly and Human Rights Council. Now, many of the Western countries they want that India should be supporting the Western countries' effort in sanctioning Russia, but India is following its independent foreign policy. Okay, and now in succession to that, now Dalip Singh, who is the deputy NSA, now he will be visiting India. He is not deputy NSA of India, he is the deputy NSA of US. Okay, so these are the timelines of visits by various foreign dignitaries in India. Okay, now the latest will be दलीप सिंह. यहाँ पे नेपाल की बात हो रही है. नेपाल पीएम शेर बहादुर शाह देउबा, ही ऑल्सो विजिटेड इंडिया रिसेंटली. द नेक्स्ट इज पे इन रूबल्स फॉर गैस. सो यहाँ पे जैसे कि रशिया में क्या हो रहा है कि बिकॉज इट हैज़ बीन सैंक्शनड, SWIFT has imposed sanction on the financial institutions in Russia. So Russia में जो है they cannot trade in dollar. So now Russia is insisting to that any trade which is happening with Russia, they should pay in rubles. Ruble is the currency of Russia. The next is new development in Russia-Ukraine crisis. तो यहाँ पे हम पहले जानते हैं कि थर्ड राउंड ऑफ टॉक हो रहा है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. द फर्स्ट राउंड वाज इन बेलारूस, द सेकंड वाज इन टर्की, द थर्ड वन इज इन इस्तांबुल इन टर्की. तो यहाँ पे ओवर हियर नाउ रशिया हैज़ अनाउंस्ड टू फंडामेंटली स्केल बैक ऑपरेशंस इन द नियर कैपिटल सिटी कीव and then northern city of Chernihiv. So in these two cities Russia is going to back down its military operations over here so that the negotiations between two countries should continue. Okay, then the Ukraine had proposed earlier, Ukraine ने कल भी बात की थी, हमने कल भी पढ़ा था that it has proposed neutrality and नॉन न्यूक्लियर स्टेटस. फाइन, अब उसको कुछ गारंटी चाहिए कि दैट जो उसका सोवरेंटी है वो हार्म नहीं होना चाहिए, एंड इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन क्रीमिया विच वॉज सीज्ड बाय रशिया इन 2014. नाउ राइनो पॉपुलेशन अप बाय 200 इन काजीरंगा. तो अगर हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है ग्रेट वन ऑन राइनो का कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम. ओके, इट हैज़ इंक्रीज बाय 200 इन 4 years. ओके, एंड नाउ इफ यू विल जस्ट सी काजीरंगा नेशनल पार्क, इट इज़ ऑन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. काजीरंगा पार्क, इट इज़ अ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अलॉन्ग विथ काजीरंगा, सुंदरबन, ओके, सुंदरबन, वैली ऑफ फ्लावर्स इन उत्तराखंड, Nanda Devi, these all are part of UNESCO World Heritage Site. They are natural sites. अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे म्यांमार के बारे में बात करेंगे. म्यांमार में that is military coup, the third military coup in Myanmar. It took place last year on February 1st. Okay, and now we are discussing this because recently in Myanmar Armed Forces Day was celebrated where Russia was invited as a chief guest. Okay, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे म्यांमार का और रशिया का जो डिफेंस टाइज है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, and now what is happening over here is that there is international criticism against the military rule in Myanmar. Recently US has declared the crime which is happening, the violence which is happening in Myanmar as a crime against humanity. Okay, it has been declared as crime against humanity. Okay, now if you want to see the history of Myanmar, तो ये जो कूप है ये पहली बार नहीं हुआ है, ये तीसरी बार हुआ है, थर्ड टाइम. ठीक है ना, पहले बार 1960s में हुआ था, उसके बाद 1988 में हुआ था. 2 बार हो चुका है, 1962 में और 1988 में. This is the third coup which happened in 2021 and this coup was led by General Min Aung Hlaing. General Min Aung Hlaing. Okay, now what happened during this coup was that the National League of Democracy led by Aung San Suu Kyi, okay, it had got majority in 2021 general election. Now fearing that the popularity of Aung San Suu Kyi is rising,
So the military junta, it did coup and captured power in Myanmar. After that, Aung Suu Kyi, different charges were brought against her, and now she is in a prison. If you will just see over here that on June 14, 2021, Suu Kyi, she went on trial facing various charges. Then in November 16, 2021, the military authorities, they add electoral fraud charges against her. Fine. Now along with that, there are certain international journalists also who have been detained or killed in this violence in Myanmar. Okay, now if you will just see that यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो पहला कूप हुआ था वो 1962 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1988 में। उसके बाद अराउंड 2011 देयर वाज ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी, बट स्टिल व्हाट हैपेंड दैट म्यांमार में 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन बना, 3 बार इनेक्ट हुआ। ओके, बट उसमें क्या हुआ कि हमेशा मिलिट्री को पावर दिया गया। तो जैसे कि हम करंट उसकी बात करें तो जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, द आर्मी इट गॉट टू 25% ऑफ द सीट इन द नेशनल लेजिस्लेचर। इसका मतलब कि कोई भी मेजॉरिटी डिसीजन पास नहीं होगा विदाउट द सपोर्ट ऑफ मिलिट्री। फाइन। अब उसके बाद देखिए व्हाट हैपेंड दैट कि 2010 में इन्होंने ऑन्ग सू की को रिलीज़ किया प्रिजन से। ओके, बट उन्होंने एक लॉ ऐसा बनाया कि ऑन्ग सू की कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। ओके, जैसे कि उस लॉ में ऐसा था कि कोई भी वो पर्सन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता जिसका स्पाउस जो है वो फॉरेनर है। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, देयर वर इलेक्शंस इन 2015 वेयर ऑन्ग सू की शी वॉन 77% ऑफ द सीट्स इन पार्लियामेंट। नाउ इन 2021 शी वन मोर सीट्स एज कम्पेयर टू 2015 विच लेड द मिलिट्री टू सीज द पावर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी। अब हम यहाँ पे अगर इंडिया का स्टैंड देखें तो इंडिया जो है is maintaining its relationship with the Myanmar. Okay, in the idea of India is to check the China's growing influence in Myanmar। मतलब कि अगर इंडिया म्यांमार का अगर रिलेशनशिप स्टॉप हो गया so China will get the huge way to increase its relationship with Myanmar which can in future endanger India also। उसके साथ साथ इंडिया हैज़ abstained from voting on the United Nations General Assembly's resolution related to Myanmar। ओके, रिसेंटली इंडिया ने अर्ज किया है म्यांमार को टू एंड वायलेंस एंड टू इम्प्लीमेंट एशियान्स 5-point सेंसस। ओके, बट इट हैज़ कंटिन्यू टू ऑफरिंग मिलिट्री एक्सपोज टू म्यांमार। अब म्यांमार इज अ पार्ट ऑफ बिम्स्टेक ऑल्सो। ओके, म्यांमार इज अ पार्ट ऑफ बिम्स्टेक ऑल्सो। सो यहाँ पे बात चल रही थी कि क्या म्यांमार को एक्सक्लूड करना है बिम्स्टेक से। तो यहाँ पे श्रीलंका इज़ द चेयर ऑफ बिम्स्टेक, सो श्रीलंका को डिसीजन लेना था। सो श्रीलंका ने बोला कि नहीं, हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अगर हमको किसी के कहीं पे भी अगर चेंज लाना है तो उसको एंगेज करके चेंज ला सकते हैं। सो द टर्म यूज्ड वाज एंगेज एंड चेंज रेदर देन टू आइसोलेट। फाइन। The next is India seeks closer BIMSTEC partnership। ठीक है, तो यहाँ पे BIMSTEC का होने वाला है। द फुल फॉर्म ऑफ BIMSTEC इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका जो समिट है वो श्रीलंका में होने वाला है। इसका एक प्रॉब्लम जो है BIMSTEC का, वो बीच में बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में आ गया था बिकॉज ऑफ द रोहिंग्या क्राइसिस in 2017। okay, but now again the BIMSTEC is taking place in Sri Lanka। it will be in a virtual mode hosted by Sri Lanka। fine। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमको यहाँ पे याद रखनी है कि इस BIMSTEC में क्या क्या नया होने वाला है। तो एक तो होने वाला है BIMSTEC का चार्टर आएगा। ओके, तो BIMSTEC चार्टर विच विल बी लैंडमार्क अचीवमेंट। द नेक्स्ट विल बी BIMSTEC मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। दिस विल बी द सेकेंड important thing which will be happening in this BIMSTEC summit। अब BIMSTEC के मेंबर्स कौन कौन से हैं वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो हमने पहले भी किया हुआ है। सो इट इज़ इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। ओके, सो ओवर हियर इट इज़ mentioned।
Now, the Parliamentary Standing Committee on Information and Technology, they have questioned the Facebook officials over allegations that algorithm जो यूज़ करती है फेसबुक, ओके, इट इज़ अनफेयर फॉर सर्टन पॉलिटिकल पार्टी एंड इट प्रमोट्स अनदर पॉलिटिकल पार्टी, ओके। उसके बाद द सेकेंड एलिगेशन अगेंस्ट फेसबुक इज़ कि यहाँ पे हेट कंटेंट को रिवॉर्ड किया जाता है, ओके, और जो कंपनी है इट लैक्स इंडियन लैंग्वेज एक्सपर्ट फॉर क्वालिटी चेक, okay. Now the parliamentary committee was meeting under the subject safeguarding citizens rights and prevention of misuse of social online news media platforms, which includes special emphasis on women's security in the digital space, okay. So यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे अगर अल जज़ीरा का एक रिपोर्ट देखेंगे, द रिपोर्ट्स कलेक्टिव, यहाँ पे द रिपोर्ट इज सेइंग दैट 5,36,070 political advertisements were placed on Facebook and Instagram, okay, from year February 2019 to November 2020, and all this has been found that this all ads were systematically undercut the political competition in the world's largest democracy. The next is high suicide rate in CAPF. Now what is CAPF? Central Armed Police Force. Now Central Armed Police Force, it comes under Union Home Ministry. So it has been found by the Ministry of Home Affairs has informed the Lok Sabha that as many as 156 personnel of Central Armed Police Forces have taken their own life in 2021. Now Central Armed Police Force में कौन कौन से forces आते हैं? So it is Central Reserve Police Force, Central Industrial Security Force, Indo-Tibetan Border Police, SSB means सशस्त्र सीमा बल, Border Security Force, National Security Guards and Assam Rifles, okay, they all are part of CAPF. Now यहाँ पे don't get confused with राष्ट्रीय राइफल्स, ठीक है ना। असम राइफल्स तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, राष्ट्रीय राइफल्स ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, ये इंडियन आर्मी का पार्ट है, ओके, and it comes under Ministry of Defense, Rashtriya Rifles. Now static question, where is Sariska Tiger Reserve located? So Sariska Tiger Reserve is located in Alwar in Rajasthan, अलवर इन राजस्थान। फॉर एग्जांपल अभी पहले हमने काजीरंगा के बारे में बात किया, काजीरंगा नेशनल पार्क। सो काजीरंगा नेशनल पार्क इज नेशनल पार्क एज वेल एज टाइगर रिजर्व। Now श्रीलंका में द इकोनॉमिक क्राइसिस इज गोइंग ऑन एंड नाउ देयर हैज़ बीन शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स। अब जो श्रीलंका और इंडिया का जो इम्पोर्टेंट जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस। इस डिफेंस पैक्ट में जो इंक्लूडेड है हम खाली उसके बारे में पढ़ेंगे। एक तो इसमें है फ्लोटिंग डॉक, ओके, फ्लोटिंग डॉक। द फर्स्ट विल बी इंडिया विल बी प्रोवाइडिंग फ्लोटिंग डॉक टू श्रीलंका एंड सेकेंड इट विल बी प्रोवाइडिंग डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, ओके। नाउ इफ यू विल जस्ट सी that the floating dock facility from the government of India will come at no cost, okay, and has been projected to reduce the annual outlay of LKR by 600 million, okay. The next is Dornier aircraft. So Dornier aircraft is a reconnaissance aircraft. अब इसका objective क्या होता है? It is deployed for maritime surveillance, search and rescue operation and to deliver information to various required platform. Fine. नाउ ये जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है ये पहले मॉरिशियस को भी दिया जा चुका है, ओके। इट इज़ अंडर इंडियाज पॉलिसी इन इंडियन ओशन कॉल्ड एज सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। नाउ highlights from economics, just have to remember that ICRA, it has cut the financial year 2020-23 growth forecast to 7.2% ड्यू टू यूक्रेनियन वॉर एंड ऑयल कॉस्ट। फाइन, तो जो हमने पहले भी पढ़ा था स्टैगफ्लेशन के बारे में, ओके, फाइन। सो राइजिंग प्राइजेस ड्यू टू यूक्रेन वॉर एंड ऑयल कॉस्ट, दिस इज गोइंग टू
derail the growth prospects in developing countries including India. So जो downside risk है इंडिया के growth को, that is coming from Ukrainian war, which is going to increase the prices, commodity prices in the international market, which is going to increase the input cost of various products, and the next will be oil cost. The next is appointment. So FedEx has named Raj Subramaniam, who is from IIT Bombay. So Indian American Raj Subramaniam, now he has been appointed as CEO of FedEx. Okay, now he is going to replace Frederick Smith, who was the chairman and CEO, and he is going to step down on June 1. The next is Indigo. Okay, Air Indigo, it has announced Gaurav Negi as the Chief Financial Officer effective from April 1. Okay, now he is going to replace Jiten Chopra, who was earlier the CFO of Indigo. Now friends, आज के हम एडिटोरियल की तरफ आते हैं. So again we are talking about BIMSTEC. So BIMSTEC, which was founded in 1997. So here again Sri Lanka is gearing up to host 5th Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation Summit, which will be held in virtual mode from March 30th. Okay, now BIMSTEC, it aims for collaboration in Bay of Bengal region for security and development for all. अब इसके जो मेंबर्स हैं एक बार फिर से हम मेंबर्स कर लेते हैं. इट इज़ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड. फाइन. यहाँ पे जो हम फोकस करते हैं दैट इज़ टू एनहांस रीजनल स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बिम्स्टेक से इंडिया के कौन से रीजन को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, तो एक तो कोस्टल रीजन हो गया, दूसरा इज़ अ नॉर्थ ईस्ट रीजन. सेकेंड इज़ दैट बिम्स्टेक इज़ अ प्लेटफॉर्म for India's other policy. Those other policies are neighborhood first policy, and the second one is look east, act east policy. Fine. Now over here अगर हम देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल itself is a area of importance. हमने कल के एडिटोरियल में भी पढ़ा था कि दैट इकोनॉमिक वाइज अगर हम देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड्स आर डिपेंडेंट अपॉन द resources found in Bay of Bengal. Second is that there is a threat to Bay of Bengal from climate change, pollution, illegal and unreported fishing, that is IUU, illegal unreported fishing in Bay of Bengal. Fine, but still Bay of Bengal, okay, is a region which can give fillip to development of Asia. क्योंकि अगर हम Bay of Bengal का लोकेशन देखेंगे तो Bay of Bengal it connects Asia with Southeast Asia. Okay, so this has become very important that it is a connecting between Asia, South Asia and Southeast Asia. So if we focus on connectivity projects especially, okay, so BIMSTEC is coming up with its transport connectivity plan, master plan for transport connectivity. So this can play a very important role in boosting regional economic and trade ties among the BIMSTEC nations. Along with that, this BIMSTEC can bridge the nation and it can provide a fulcrum for broader Indo-Pacific policy. The next is some of the initiative taken by India under BIMSTEC. So India has implemented its promise. India has set up the Center for Bay of Bengal Studies at Nalanda University, Bihar. This Center for Bay of Bengal Studies, it is going to carry out research on art, culture and other subjects which are related to Bay of Bengal. द नेक्स्ट इज रेजिंग वेव. तो यहाँ पे ओमिक्रॉन की बात हो रही है. हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट हांगकांग. बड़ा पिक्यूलियर केस है ये, एक थोड़ा ध्यान दीजिएगा. हांगकांग ने पहले कोविड से लड़ने के लिए एक पॉलिसी फॉलो किया. उस पॉलिसी का नाम है ज़ीरो कोविड पॉलिसी. दैट पॉलिसीज नेम इज ज़ीरो कोविड पॉलिसी.
ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से क्या हुआ कि जिसको भी मतलब कि यहाँ पे जो केस है वो ज़ीरो पे रखना है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक होता है नेचुरल इम्यूनिटी वो लोगों के बीच में डेवलप नहीं हुआ। उसके साथ साथ अगर हम वैक्सीनेशन देखें तो वेरी फ्यू पीपल हैव गॉट वैक्सीनेटेड। अगर हम 80+ पॉपुलेशन की बात करें तो 25% ऑफ द 80+ पॉपुलेशन हैव गॉट वैक्सीनेशन। तो उसके बाद जब वहाँ पे ओमिक्रॉन का रिसर्जेंस हुआ हांगकांग में, सो इट हैज़ लेड टू डेथ, और जो उसकी डेथ है वो बहुत ज़्यादा है, इंडिया के कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा है। सो फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन इन हांगकांग 35 आर डाइंग बिकॉज ऑफ कोविड-19। अगर हम इसको कंपेयर करें तो इंडिया में इट वॉज 3, इंडिया में इट वॉज 3 पर मिलियन, ब्राज़ील में इट वॉज 14 पर मिलियन, और यूएस में इट वॉज 10 डेथ पर मिलियन। ठीक है ना। बट ओवर हियर इफ़ यू विल जस्ट से, तो यहाँ पे देखिए रीजंस क्या हैं हांगकांग के। पहला है कि जो इन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो किया था, ओके, तो इससे क्या हुआ कि जो इम्यूनिटी लेवल हुई पॉपुलेशन में वो काफ़ी कम हुई। देन उसके बाद जो वैक्सीनेशन रेट है वो काफ़ी कम है। फाइन। अगर हम देखें 80+ पॉपुलेशन जिनकी वैक्सीनेशन जस्ट 25% है, दे हैव अकाउंटेड मोर देन 70% ऑफ द कोविड-19 डेथ्स। फाइन। नाउ अब यहाँ पे भी देखा जा रहा है हांगकांग में कि वैक्सीनेशन जो लोग बचे हैं 80+ ग्रुप में वो वही लोग हैं, ठीक है ना, दोज हु हैव टेकन द वैक्सीनेशन। सो ओवर 70% ऑफ द दोज हु हैव डाइड दे वर अनवैक्सीनेटेड इन हांगकांग। नाउ फ्रेंड्स, द डूम्सडे बुक दैट लॉन्च्ड द मूवमेंट, ठीक है ना, यहाँ पे हमको 1970s में जाना पड़ेगा, ठीक है, इसको समझने के लिए। एक क्लब ऑफ रोम था, ठीक है, क्लब ऑफ रोम। नाउ इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1968 बाय इटालियन इंडस्ट्रियलिस्ट ऑरेलियो पेक्केई। क्लब ऑफ रोम ने एक स्टडी कंडक्ट किया, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ। This study predicted that the world will end by 2070. The world will end by 2070 unless the world take necessary steps to advance the concept of sustainable development. इसी के बाद this study was conducted somewhere in 1970-72. इसी के बाद the world's interest rose in protecting the environment, sustainable use of natural resources, okay, controlling the पॉपुलेशन, कंट्रोलिंग दी पॉपुलेशन। तो ये जो बुक था लिमिट्स टू ग्रोथ, इसने प्रेडिक्ट किया था कि अगर इसी तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता रहा, इसी तरीके से जैसे जो रेट्स अभी चल रहे हैं, अगर इसी रेट से अगर पॉपुलेशन बढ़ता रहा, सो वन डे विल कम देयर विल बी लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द एनवायरनमेंट विल बी डिग्रेडेड, द ग्लोबल वार्मिंग वुड हैव टेकन प्लेस एंड दिस विल लीड टू एंड ऑफ द अर्थ। So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, take care. Thank you.